Good morning, students. In our last class, we have completed the reading of chapter 5, The Snake and the Mirror. Now it's time to do the exercises of this chapter. The first question is discuss in pairs and answer each question below in a short paragraph in about 30 to 40 words. The sound was a familiar one. Now different questions has been asked based on these lines. The doctor heard a noise from above. He thought that the sound was made by the rats in the tilted roof. He heard the sound 3 times. When the doctor sat in the chair, the sound stopped because the snake was about to jump on the ground at that time. You can write this answer. What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? First is he would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. And the second is he would always keep an attractive smile on his face to look more handsome. So this are the probable answers of the two questions. And then the third question is, I looked into the mirror and smiled. I forgot my danger and smiled feebly at myself. Based on these two lines, the questions are asked. When the doctor first looks into the mirror, he smiles as he thinks he is an attractive bachelor doctor. The next line, he smiles at himself because he feels he is a poor, foolish and a stupid doctor. His vanity changes into humility due to the coiled snake in his arm, on his arm. Now the second part of the question is, this story about a frightening incident is narrated in a humorous way. What makes it humorous? You have to write down them. The kind of person the doctor is, money or possessions, the kind of person he wants to be, the person he wants to marry, the person he actually marries, his thoughts when he looks into the mirror, his thoughts when the snake is coiled around his arm. So you can write the answers that the doctor is a poor person, he has little money, he lives in an unelectrified rented house, he has just started his medical practice. He wants to be rich, he also wants to look good, that's why he decides to grow a thin mustache. The doctor wants to marry a woman doctor with good medical practice and having a lot of money. She should be fat so that she won't be able to run after him for his silly mistake and catching. He actually marries a thin, reedy woman. She has the gift of a spinster. ये जो या थर्ड का आंसर जो लिखा हुआ है, you can write those answers in your notebook. So थर्ड का सेकंड पार्ट जो है उसमें एक दो लाइन और है. So here the textual questions completes. You have to write down these answers in your notebook after obviously writing the word meanings. Okay. So students, after writing the question answers in your notebook, now we are going to start a new chapter which is My Childhood. My Childhood. It is written by our beloved, President of India, APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam has written a lot of books he has written. One of the book's name is Wings of Fire. Now this extract, My Childhood is taken from the chapter, is taken from the book rather, Wings of Fire. Aag ke Pankh. Can you think of any scientists who have also been statesmen? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002.
In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. ऑटोबायोग्राफी है ये, आत्मकथा, जिसे खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है अपने हाथों से। तो विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया है, अपनी पूरी लगभग ज़िंदगी का जिक्र किया है। इसमें से सिर्फ बचपन वाला पार्ट जो है वो एब्रीज्ड फॉर्म में, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने चैप्टर के रूप में दिया गया है, माई चाइल्डहुड। पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में। वैसे इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम समझ लें कि इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक तो अब्दुल कलाम है, दूसरा शिव सुब्रमण्य अय्यर है जो कि अब्दुल कलाम की साइंस टीचर है और एक पारंपरिक रूढ़िवादी ब्राह्मण है। रामानंदा शास्त्री है जो कि कलाम के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैनुलब्दीन है जो अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम है। अशीअम्मा है जो अब्दुल कलाम की माताजी का नाम है और जो कि बहुत ही दयालु और भली महिला है। ये 5 मुख्य किरदार इस कहानी में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Jainulabdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. Wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि मेरा जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था, अभी जिसका नाम चेन्नई है, पहले जिसका नाम मद्रास था। उस राज्य के रामेश्वरम नाम के शहर में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी का नाम जैनुलब्दीन था और उनके पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये सब बुराइयां होने के बावजूद वो बहुत गहरा ज्ञान रखते थे और लोगों के प्रति दयालुता की उनके मन में गजब की भावना थी। और उनको एक बहुत ही अच्छी पत्नी भी मिली थी, अशीअम्मा यानी मेरी माताजी। ये दोनों मिलकर के हमारे गांव के, मतलब हमारे शहर के बोल लो या हमारे लोकेलिटी के, हमारे शहर में जो हमारा इलाका था, हमारा जो लोकेलिटी था, वहाँ पर हमारे घर में जितने मेंबर नहीं थे उससे बहुत ज़्यादा मेंबर आस पड़ोस के आकर के हमारे घर में रोज़ाना खाना खाया करते थे। यानी कि मेरे माता पिता आस पड़ोस के लोगों को खाना खिलाया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. बहुत अच्छी बात कही एपीजे अब्दुल कलाम ने कि वैसे तो मेरे कई भाई बहन थे और उसमें से मैं एक था। हालांकि मेरे माता पिता काफ़ी अच्छी कद काठी के थे, माता पिता की अच्छी कद काठी होने के बावजूद मैं एक मीडियम हाइट का या शॉर्ट हाइट का लड़का हुआ। मेरे माता पिता काफ़ी खूबसूरत थे लेकिन मैं एक साधारण सा था।
अपने पूर्वजों के बनाए हुए घर में हम लोग रहते थे, जिस घर को प्रोबेबली 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। पक्का घर था मेरा, ईंटों से और ईंट गारे से बना हुआ पक्का घर, जो कि रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में था। मेरे पिताजी काफ़ी साधारण और माने साधारण भी थे, और मेरे पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे। साधारण और स्ट्रिक्ट पिता के यहाँ हमें बचपन में फालतू के कंफर्ट्स और लग्जरीज से हटा करके ही पाला गया। हमें ज़्यादा कंफर्ट्स नहीं दिए गए, हमें ज़्यादा लग्जरीज नहीं दी गई। हालांकि जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब हमें समय समय पर प्रोवाइड की जाती रही, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो कपड़े हो, सब हमें समय समय पर मिलता रहा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, मटेरियली भी और इमोशनली भी। मटेरियली ऐसे कि हमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मिलती रही, और प्यार भी माता पिता से खूब मिला। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old। इससे पता चलता है उनका जन्म 1931 में हुआ था। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब एपीजे अब्दुल कलाम 8 साल के थे। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। एक अजीब सी घटना घटी कि उस समय अचानक में, अच्छा तामारिंद का मतलब होता है इमली। अजीब सी घटना घटी कि न जाने क्यों अचानक से इमली की जो मांग है, वो इमली के बीज की जो मांग है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इरप्टेड का मतलब स्टार्टेड। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो चूंकि मांग बढ़ गई थी इमली के बीजों की, इसलिए मैं इमली के बीज इकट्ठे करने लगा और उनको दुकानों में जाकर के मॉस्क स्ट्रीट की दुकानों में जाकर के बेचने लगा। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। एक दिन की मेहनत मुझे 1 अन्ना पैसे की कमाई देती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार which I would later attempt to trace in the headlines in Deenamani। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war। तो उनका कहना है कि एक दिन का जो इनकम था मेरा इमली के बीजों को बेच करके, वो 1 अन्ना होता था, 1 अन्ना। और उस समय 1 अन्ना एक बड़ी रकम थी। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो जो है मुझे द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, और वो कहानियाँ या वो मुख्य घटनाएं, मुख्य बातें मुझे दीनमनी नाम के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलती थी। तो जलालुद्दीन जो मेरे जीजा जी थे, यानी कि मेरी बहन के जो पति थे, उनसे भी मुझे जो कहानियाँ सुनने को मिलती द्वितीय विश्व युद्ध की, और जो अखबारों में पढ़ने को मिलती, वो लगभग एक ही किस्म की थी। हमारा एरिया जो था रामेश्वरम का, वो द्वितीय विश्व युद्ध से अफेक्टेड नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध का ज़्यादा कोई मतलब उसमें असर हमारे एरिया में देखने को नहीं मिला। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन बहुत जल्द ये सूचना मिली कि भारत जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा था,
उसे एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना होगा। एलाइड फोर्सेस में यूके, यूएसए और रशिया की आर्मी थी। यूके, यूएसए और रशिया की आर्मी के साथ भारतीय आर्मी को योगदान देना होगा, ये खबर सुनने को मिली। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम टेम्पल। तो ये जो बात हुआ कि इस तरह से जो पहला कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब तो मौत होता है, वैसे यहाँ पर जो है कैजुअलिटी का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बुरी घटना। कैजुअलिटी का मतलब मौतें भी होती है, यहाँ पर कैजुअलिटी का मतलब कोई बुरी खबर से हम समझ सकते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बुरी खबर ये सामने आई कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी के ठहराव में रोक लगा दी गई। ये कह दिया गया कि रामेश्वरम स्टेशन में रेलगाड़ी नहीं रुकेगी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। फिर ये कहा गया कि अब जो है रामेश्वरम में जो है ट्रेन नहीं रुकेगी, और इस कारण से रामेश्वरम रास्ता और रामेश्वरम रोड जो था, और रामेश्वरम रोड में चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर्स फेंके जाने लगे। रामेश्वरम रास्ता रामेश्वरम और धनुषकोडी ये दो स्थानों के बीच में आता था, तो इन दो स्थानों के बीच में रामेश्वरम रास्ते पर न्यूज़पेपर्स फेंके जाते थे। डैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन। इससे क्या हुआ, इससे जो है उनके जो चचेरे भाई जो थे, यानी भतीजे सॉरी नॉट जो उसके चचेरे भाई जो थे, डैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन, तो इससे उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ इट नेचुरली आई फील द स्लॉट। इससे उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन जो कि रामेश्वरम में अखबार बांटते थे को बाध्य कर दिया गया कि वह बंडलों को लपकने के लिए किसी सहायक की तलाश करे, और स्वाभाविक रूप से वो सहायक मैं बना। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरी बहुत बहुत मदद की कि मैं पैसे कमाऊं। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी बीतने के बाद, लगभग 50 साल बीतने के बाद, आज जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ और याद करता हूँ वो दिन जब मैं पेपर कलेक्ट करके बेचा करता था, या जिस तरह से, या इमली के बीजों को बेच करके मैं जो पैसे कमाया करता था, इमली के बीजों को बेच करके पैसे कमाना, पेपर को स्वीकार करके पैसे कमाना, पेपर को स्वीकार करके पैसे कमाना, इमली के बीजों को बेच करके पैसे कमाना, ये जो प्रक्रियाएं थी, ये 50 साल बाद याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और गर्व फील होता है कि अपनी कमाई तो अपनी कमाई होती है। तो इस तरह से ये जो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। सो वी हैव रीड अप टिल दिस पैराग्राफ and we came to know that Dr. APJ Abdul Kalam was a very diligent, very self-dependent person, and he was very happy to earn his livelihood by his own. He has not seen any work as the petty work, as the odd work. Even the selling of tamarind seed or the selling of newspaper, both are
the precious jobs for him. So this one thing which we can learn from our president, the first and most foremost and most important thing which we can learn from his life is that no work is petty, no work is odd, no work is cheap. Work is worship, whether it can come in any form. We should worship the work. That's all for today, students. Next we will read in our next video. Thank you very much.